आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अभिनंदन समारोह के संबंध में की गई प्रेस मीट। सेंट गेरोसा स्कूल मामले में कर्नाटक सरकार ने जांच अधिकारी किया नियुक्त। अंबेडकर भवन की तर्ज पर बसपा भवन का निर्माण करे, दावणगेरे दक्षिण विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने राज्य सरकार से किया आग्रह। पुणे के स्क्रैप गोदाम में भयंकर विस्फोट के बाद लगी आग, 10 दमकल की गाड़ियां मौजूद। मशहूर कवि गुलजार संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित। वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास में राफेल समेत 120 विमानों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 20 फरवरी को बीदर के नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 बजे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो के 371 जी लाने के वजह से अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाने वाला है। उस संबंध में आज रविवार 18 फरवरी को बीदर के पत्रिका भवन में कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई की ओर से कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में ईश्वर खंड्रे के अलावा कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, अरविंद कुमार अरली, हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, अब्दुल मन्नान सेठ, अनिल बेलदार, बसवराज मार्गे, के पुंडलिक राव और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सफर के संबंध में बताया और 20 फरवरी को होने जा रहे उनके अभिनंदन समारोह में उपस्थित रहने की जिले के सभी लोगों से आग्रह किया। इस अवसर पर राजशेखर पाटिल और दूसरों ने मीडिया कर्मियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 2012ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ಸತತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು. 371 ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 2013ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ 371J ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ 371J ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ 10 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ರೂವಾರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದಂಥ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ, 50 ವರ್ಷ ಅವರ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರೇನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಆದಂಥ ಇವತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಬೀದರ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಲ್ಕಿಯ ವರವಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇದೇ ನಾಡಿದ್ದು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ विनंतियों ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने के कदम की निंदा करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धारवाड़ के जिला कलेक्टर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आयकर विभाग भाजपा एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज करना गलत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तानाशाही रवैया गलत है। इस मौके पर कांग्रेस नेता दीपक चिंचोर, केपीसीसी सदस्य रॉबर्ट हद्दापुरी, नागराजा गुरीकारा, आनंद जाधव, वसंत अर्काचारी, जेम्सा एम और कई अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी और कलबुर्गी में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त आकाश को सेंट गेरोसा स्कूल में हुई घटना की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सेंट गेरोसा स्कूल के एक शिक्षिका पर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि अधिकारी घटना के साथ साथ उसके बाद के घटनाक्रम की जगह जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। राव ने स्कूल में हुई घटनाओं का दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि जांच से आरोपों और उनके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की सच्चाई सामने आ जाएगी। दावणगेरे दक्षिण विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने राज्य सरकार से सभी जिलों में अंबेडकर भवन की तर्ज पर बसवा भवन का निर्माण करने का आग्रह किया। शनिवार को यहां कर्नाटक के सांस्कृतिक प्रतीक घोषित किए गए बसवन्ना के चित्र का अनावरण करने के बाद उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अपील की है और प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। शमनूर जो पीआर भी है, उन्होंने कहा कि बसवन्ना को कर्नाटक का सांस्कृतिक प्रतीक घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आने वाले दिनों में बसव कल्याण में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। केएसआरटीसी ने विश्व निर्माण और विपणन कांग्रेस में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। निगम ने 5 पुरस्कार जीते, जिनमें मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रांड में उत्कृष्टता के लिए ग्लोबल ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड शामिल है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुणे के पिंपरी चिंचवड कुंडालवाड़ी इलाके के स्क्रैप गोदाम में विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि आग ने पूरे गोदाम में अपनी चपेट में ले लिया। शनिवार को अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई है। पिंपरी चिंचवड के दमकल विभाग के अधिकारी वरद नाले के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए दमकल 10 गाड़ियों को भेजा गया है। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। साथ ही इस घटना में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी भी अभी तक सामने नहीं आई है। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ज्ञानपीठ चयन समिति ने शनिवार को यह घोषणा की। गुलजार के नाम से मशहूर संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं और वर्तमान समय के बेहतरीन उर्दू कवियों में शुमार है। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और 4 महाकाव्य समेत 240 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। ज्ञानपीठ चयन समिति ने एक बयान में कहा, यह पुरस्कार 2023 के लिए 2 भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों को देने का निर्णय लिया है। संस्कृत साहित्यकार जगतगुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे पड़ाव में शनिवार को यहां गौदालिया चौराहे पर लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। उन्होंने कहा कि भाई भाई में टकराव से देश कमजोर होगा और देश को जोड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। राहुल गांधी ने कहा, मैं गंगा जी के सामने अहंकार से नहीं आया हूं, सिर झुकाकर आया हूं। इस यात्रा में सबको लगना चाहिए कि वह अपने भाई से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2 भारत है, एक अमीरों का और एक गरीबों का भारत। इस दौरान राहुल गांधी ने भीड़ से राहुल नाम के लड़के को अपने पास बुलाकर पढ़ाई में खर्च रुपयों और बेरोजगारी के बारे में बात की। राहुल गांधी ने पूछा, नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? उन्होंने कहा, देश में 2 ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पोखरण रेंज में शनिवार को भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2024 के तहत युद्ध और हमला करने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राफेल Su-30 MKI मिग 29 मिराज 2000 तेजस C-17 और C-130 जे सहित भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक विमानों ने आकाश से वज्रपात की टैग लाइन को ध्यान में रखते हुए अभ्यास में भाग लिया। लड़ाकू विमानों ने जमीन और हवा में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना नष्ट किया। एक राफेल विमान ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से भी सफलतापूर्वक निशाना साधा। अभ्यास में परिवहन विमानों द्वारा लड़ाकू सहायता परिचालन का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें C-17 द्वारा भारी रसद की आपूर्ति और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ गुरुड कमांडो को ले जाने वाली C-130 जे द्वारा हमला शामिल है। इस कार्यक्रम में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने पहली बार अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि Mi-17 हेलीकॉप्टर ने जमीनी लक्ष्यों पर निशाना साधा। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने सेना के लिए साजो सामान की त्वरित आपूर्ति का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का संकेत देते हुए शनिवार को कहा कि वह अपनी नवगठित
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आजाद ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि 2024 जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी वर्ष होगा, इसलिए वे अपनी कमर कस ले। आजाद ने दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने नगरोटा में एक समारोह के इतर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदर्शनकारी किसानों से जुड़े मुद्दों का हमेशा के लिए समाधान निकालने की अपील की और कहा कि यह प्रदर्शन न तो सरकार के लिए अच्छा है और न ही किसानों के लिए। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एयर विस्तारा की फ्लाइट में सफर कर रही थी। इस दौरान तकनीकी खराबी के कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह घटना तब हुई जब रश्मिका मंदाना मुंबई से हैदराबाद जा रही थी। विमान में रश्मिका मंदाना के साथ अभिनेत्री श्रद्धा दास भी थी। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी समस्याओं के कारण विमान को उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही मुंबई लौटना पड़ा। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रश्मिका मंदाना को ऐसा लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगी। इस मौत के एहसास को रश्मिका मंदाना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने फैंस के साथ शेयर किया। फिल्म एनिमल में अभिनय करने वाली रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक घटना का अनुभव साझा किया। उन्होंने श्रद्धा दास के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और इसे कैप्शन दिया, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इस तरह हम आज मौत से बच गए। सुरक्षा कारणों से मुंबई लौटने का निर्णय लेने से पहले दोनों अभिनेत्रियों सहित यात्रियों को बेहद खौफ के एहसास से गुजरना पड़ा। विमान में सवार लोगों को डर था कि कहीं इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान किसी हादसे का शिकार न हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड पर एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीरें देखी गई। सनी लियोनी नाम वाला एडमिट कार्ड और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख 17 फरवरी है। पंजीकरण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRB की वेबसाइट पर सनी लियोनी की तस्वीर के साथ किया गया था। UPPRB ने शनिवार को राज्य के 75 जिलों में 2385 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की थी। फॉर्म के मुताबिक एक्टर सनी लियोनी का परीक्षा केंद्र श्रीमती सोनेश्री मेमोरियल गर्ल कॉलेज था, जो कन्नौज के तिरवा तहसील में है। कन्नौज पुलिस के साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अभिनंदन समारोह के संबंध में की गई प्रेस मीट। सेंट गेरोसा स्कूल मामले में कर्नाटक सरकार ने जांच अधिकारी किया नियुक्त। अंबेडकर भवन की तर्ज पर बसपा भवन का निर्माण करे। दावणगेरे दक्षिण विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने राज्य सरकार से किया आग्रह। पुणे के स्क्रैप गोदाम में भयंकर विस्फोट के बाद लगी आग, 10 दमकल की गाड़ियां मौजूद। मशहूर कवि गुलजार संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित। वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास में राफेल समेत 120 विमानों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।